Hello and welcome everyone. We are back with another sequence in our fundamental physics series. And today we are going to deal with the magnetism part of physics that we started out with. And although we have covered some basic, not basic, but we have covered some intermediate to advanced principles of magnetism that that come into play because of electricity. Electricity has a major role in uh, making the magnetic effect of electricity come into play by tweaking certain properties in certain conductors and materials, which can convert them into magnets and vice versa. So let us see what the NCRT syllabus has in stock for us in terms of magnetism. So as always, we make a timeline for our uh, whenever we proceed with our lectures. We always make a timeline that helps us keep things in perspective and has a goal defined for us, that what are the topics that we are going to learn and where we have to find them and how much time will it take to cover all of this. So for magnetism, you can refer the NCRT's chapter 13 in class 6th and then the chapter 13th in class 10th respectively. These are the two places where NCRT has covered magnetism. So at this juncture we are at this oh sorry, I forgot that the screen is not shared. Let me quickly go back. And yeah, sorry, my mistake. So yeah, we are back with the physics series, and this is the point where we are at the class 6th uh, the class 6th juncture, and we are dealing with the chapter 13, that is the fun with magnets. And it is a very basic subject, which is just going to deal with the introductory parts of permanent magnets. Yeah, magnets that are not made out of the magnetic effect of electric current that we have studied up till now. So we'll be covering this in this class, which is going to be brief, and then the more advanced or intermediate topics that we have already learned in our electricity and circuits journey, we'll take these up in detail when we get here. So without further ado, let's jump into it. How were the magnets discovered? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. I don't know if it will be very relevant to us, लेकिन हाँ, ये जो इमेज आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे ज्योग्राफिकल एक फिनोमेना से रिलेटेड है, हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से. ले एंड लद्दाख जो एरिया है, वहां पे एक मैग्नेटिक हिल नाम की जगह है. ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जब आप लोग बाइक वाइक से जाते हैं यहाँ पे ट्रैक करने या राइड करके डिस्कवर करने, तो बाइक्स जो होती हैं इनको वहां पे बस रोक देना होता है. जो भी मेटालिक एलिमेंट होता है बाइक्स में, वो अपने आप खिंचा चला जाता है इस पहाड़ पे. तो ये बहुत ही एक वंडर ऑफ नेचर है, जो कि यहाँ जाके देखने मिलता है. बट ऐसा है क्यों? ये मैग्नेट्स जो है सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ही हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं. एंड यहाँ इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे इतना सारा मतलब नेचुरल मैग्नेट का एक भंडार जैसे कह सकते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है. उसकी वजह से जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स यहाँ रहते हैं, वो अपने आप अपहिल जाते जाते हैं. तो वैसे इसके पीछे स्टोरी मैंने जब उसको थोड़ा पढ़ा था तो समझ में आया था कि ये जो माउंटेन एरिया है, ये अर्थ पे तब बना था जब आइस एज चल रही थी. मतलब अर्थ जब अपने इनिशियल फॉर्मेटिंग ईयर्स में थी, जब सॉरी फॉर्मिंग ईयर्स में थी, जब क्या कहते हैं वहां जस्ट वो कूल डाउन होना शुरू हुई थी. वो एक भट्टी, एक मोल्टेन लावा के एक बॉल से फिर धीरे धीरे जब कंडेंस होना शुरू हुई थी उसका मास बढ़ने की वजह से,
तब शायद जहां आइस एज शुरू होगी, ये जो एरिया था, यहाँ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, ये मतलब प्रिजर्व होके रह गई। और फिर जब वो आइस एज खत्म हुई होगी, तब तक अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो चेंज हो चुके थे। तो यहाँ की जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो डिफरेंट है पूरे अभी के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है। इसकी वजह से ये खींची चली जाती हैं चीजें यहाँ पे। एंड जो एनसीईआरटी में हमें एक छोटी सी स्टोरी जैसी बताई गई है, वो यही है कि देयर वाज अ शेफर्ड जो भेड़े चलाते, वो his name was Magnus, and when once he was going for a shepherd round, he found that जो उसकी स्टिक थी उस पे कुछ आयरन का पीस लगा हुआ था, जिससे वो इंस्ट्रक्ट करता था अपने केटल को, या फिर चीजों को नापता था, तोड़ता, जो भी करता था, इट वाज हिज टूल टू बी यूजफुल। तो एक दिन क्या हुआ, व्हेन ही वाज रोमिंग अराउंड, तो उसका वो जो ये केन की स्टिक थी, ये स्टक हो गई कहीं पे, ये कहीं पे चिपक गई। तो वो काफी उसे दिक्कत हुई, उसे खींचने में, उसे समझ नहीं आया क्या था। फिर जब उसने काफी मशक्कत की, तो फिर उसे पता चला कि ये तो चिपक गई थी यहाँ पे। एंड दैट आयरन जो पार्ट था उस स्टिक के आगे का, ये वाला पार्ट, इट गॉट स्टक टू अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट जो रॉक्स के फॉर्म में बना रहता है। एंड इसी से ये नाम जो है मैग्नेट, ये मिला इन्हें। द मटीरियल्स विच आर नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स, रॉक्स ऐसे जो होते हैं, उनको फिर मैग्नेटाइट का नाम दे दिया गया, एंड बिकॉज द शेफर्ड्स नेम वाज मैग्नस, तो एंड बिकॉज ऑफ दैट the substances that are naturally occurring magnets are called magnetite. और there's a clear distinction कि different materials है हमारे नेचर में which are attracted to magnets and which are not attracted to magnets. तो वही simple definition है कि the materials which get attracted towards a magnet are magnetic. For example, the metals like iron, nickel, and cobalt. And the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic. तो वो हो गए भाई सिंथेटिक मटेरियल्स हो गए, जैसे प्लास्टिक है एंड पेपर है एंड वुड है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं अट्रैक्ट होती। एंड कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, आपको लग रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टर्स थे, जो कंडक्टर्स हुआ करते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, वही सब्सटेंसेस लगभग मैग्नेट का भी रोल निभाते हैं। एंड जो सब्सटेंसेस इंसुलेटर कहलाते थे, विच वर नॉट इजिली एबल टू पास इलेक्ट्रिसिटी, या विच रेजिस्टेड not resisted, which completely resisted the flow of electricity and did not allow that pass, जो insulators कहते थे जिन्हें हम, they are also non-magnetic in nature. तो एक यहाँ पे एक रिलेशन एक छोटा सा हमें फील होता हुआ लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म काफी इंटरट्वाइंड है। एंड क्योंकि मैग्नेटिज्म इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स कि कुछ एक रिलेशन जरूर है इन दोनों टेंडेंसीज के बीच। एंड बेसिक लेबोरेटरी मैग्नेट्स हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग स्कूलिंग ईयर्स में, या फिर कभी किसी किसी को अगर बर्थडे में गिफ्ट मिला हो, वो मैग्नेटिक ब्रेन सेट या कुछ ऐसा किसी ने देखा होगा, तो ये टाइप के मैग्नेट्स जनरली उसमें रहते थे, यू शेप वाले, या फिर ऐसे बार मैग्नेट्स या सिलेंडर वाले मैग्नेट्स। या फिर एक वो बहुत मजेदार चीज चली थी, रैटल एग्स करके मिलता था, मैंने भी मेले से खरीदा था। तो वैसे दो सिलेंडर ओवल शेप के मैग्नेट्स होते थे, और उनको जब आप थोड़ा दूर करके ऐसे हवा में उछालते थे, तो वो काफी चिंगारी जैसी आवाज निकालते थे। तो these are also cases of permanent magnets and which are magnetic in nature. कुछ certain shapes है। अब इनके shapes का क्या मतलब inference है, why are these made in such a way, and what is their behavior, what is the difference between all these shapes, why is a magnet in a bar shape and why is it a magnet in a cylindrical shape या U shape, ये थोड़ा एक एडवांस कॉन्सेप्ट होगा जो हम क्लास 10th के रेफरेंस में जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तब सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस हमें एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि दीज आर द बेसिक shapes in which permanent magnets come, which are laboratory made. तो let us come to this part कि मैग्नेट्स हमने जान लिया कि वो कुछ करते हैं, बट
इन लेबोरेटरी मैग्नेट्स को पढ़ने से पहले जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लेह लद्दाख में वो एक मैग्नेटिक माउंटेन है, माउंटेन मैग्नेटिक हिल जिसे कहते हैं, दैट हैज अ टेंडेंसी टू पुल थिंग्स टुवर्ड्स इट। तो मैग्नेटिज्म एक ऐसी फोर्स ही है जो अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो ऐसी चीजें जो मेटल्स हैं इन जनरल, उनको अट्रैक्ट करती है, एंड दैट द फोर्स ऑफ attraction and repulsion is what magnets do. And यही मेरा एक टॉपिक था जो मुझे समझ नहीं आया था कि हाउ टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर थिंग्स। तो इसको द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स और दिस टॉपिक हियर, फाइंडिंग डायरेक्शंस, इसको हम साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने देखा कि मैग्नेटिक हिल खींच रही है चीजों को, वो कुछ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कुछ रिलेशन है, ऐसा कुछ है जो जैसे इतने बड़े साइज का वो हिल है पूरी, इसलिए वो इतने सारे मतलब बाइक्स को भी खींच ले रही है, कार्स को भी खींच ले रही है। तो यहाँ पे जो कंपसेस होते हैं, कंपस जो डायरेक्शन दिखाने वाले हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अर्थ जो पूरी हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमें हमारे शरीर में इतना नहीं फील होती, लेकिन या हमें वैसा खिंचाव नहीं फील होता क्योंकि वो बहुत इतने बड़े एरिया में फैली, पूरे अर्थ के पेरिफेरी में फैली हुई है वो वेव्स। इसकी वजह से उनका बहुत एक्यूट, बहुत इम्पैक्टफुल इफेक्ट हमें नहीं दिखता है। बट अगर हम ऐसा एक अपैरेटस बनाए, जो ये कंपास होता है, अगर आपने देखा होगा तो इसके जो ये नीडल होती है बहुत ही हल्की होती है, किसी ने अगर खोल के देखा हो तो बस हल्का से छूने पे मुड़ भी जाती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो काफी सटल होता है, काफी लो एम्पलीट्यूड का होता है, इस वजह से इतना लाइट रखा जाता है इस कंपास को। एंड ये करता क्या है, दिस रेड टिप हियर, दिस इज व्हाट शोज कि नॉर्थ किधर है। एंड कंपासेस या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा, इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। ये अब क्वेश्चन मेकिंग वाली क्लास में हम लोग जरूर देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस रखे जाएंगे बेसिक, कि व्हाई डज अ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, या फिर why is there attraction not a repulsion, and why is there a repulsion and not an attraction। ये क्लास 10th वाले पार्ट में हमें सीखने मिलेगा, जब हम वेव्स देखेंगे कि मैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती है। उसका एक यहाँ पे हम एग्जांपल जरूर देख सकते हैं। एक अगर बार मैग्नेट बनाया जाए, बार मैग्नेट कुछ नहीं, बस एक स्टिक जैसा हो, चपटा मैग्नेट, कह देते हैं पोल है, जैसे मैं अर्थ में हमें पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो इन्हें भी हम कहेंगे कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब इलेक्ट्रिसिटी के हमारे कॉन्सेप्ट से इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। हमने ये देखा था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस, एक चीज पढ़ी थी हमने, मोटिवेशन जो चार्ज को मूव करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, वैसी ही कुछ चीज यहाँ पे भी है। मैग्नेट्स की जो फोर्स है वो खींचने की चीजों को या रिपेल करने की, वो इसी चीज पे डिपेंड करती है। जब पोल्स में ऐसे पोलैरिटी होती है मैग्नेट्स के बीच में, तभी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जनरेट होता है। अब जैसे एक मैग्नेट तो हमने यहाँ बना दिया, अब एक ऑपोजिट पोलैरिटी का मैग्नेट बनाते हैं। ऑपोजिट पोलैरिटी कुछ नहीं, इसको हमने उलट के रख दिया, मान नॉर्थ पोल को नीचे कर दिया है और ये साउथ पोल ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे जब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली जो बात एक सोसाइटी में कही जाती है, वो यही है कि मैग्नेट से ही डिराइव की गई है वो, कि ये जो नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एंड वही सेम चीज यहाँ पे भी होगी, अट्रैक्शन। तो ये दोनों मैग्नेट जो है जोर से आपस में चिपक जाएंगे। बट अगर हमने पोलैरिटी सेम रखी होती है, इसको वापस ऐसे घुमा दे, तो ये रिपेल करने लग जाते हैं एक दूसरे को। दैट बीइंग वन थिंग, ये रिपल्शन और ये ऐसे हो कैसे रहा है। जब हम 10th वाले पोर्शन पे जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये असल में जो अदृश्य फोर्स है जो लग रही है इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में, या फिर ये पोलैरिटी क्या चीज क्रिएट कर रही है, वो पता चलेगा। ऐसा कि कुछ ऐसी निकलती हुई सी वेव्स है, ऐसे ऐसी सी कुछ वेव्स है। किसी ने अगर साइंस की बुक्स देखी है अपने प्रीवियस ईयर्स में, तो उन्हें दिखेगा कि ऐसी शेप मिली होगी। और यहाँ पे भी हम कुछ
एरोज वगैरह बनाएंगे। तो जैसे हमने धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट सीखे थे एंड फिर धीरे धीरे डायरेक्शन उसमें इन्वॉल्व किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम ये काम करने वाले हैं। धीरे धीरे हमें ये भी समझ में आएगा कि कैसे ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिज्म की फोर्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट हो रही है, तो कैसे हो रही है, कुछ तो होगा इसमें भी। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो डिफरेंस हमने देख लिया, वही वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को फ्लो करने दे रहा था एक सर्किट में। ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स हैं, यही वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो उन्हें ये कहा नहीं जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए टर्म है, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर रिलेटिंग एवरीथिंग, हम हर चीज को एक यूनिफाइड वे में पढ़ना चाहते हैं अपने गोल के लिए, तो दिस शुड बी क्लियर टू अस कि कुछ तो रिलेशन है, because both these phenomena, electricity and magnetism, they behave in a certain similar way. ये था बहुत ही ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स आवर today's topic. This is all that we had in our class 6 context. And थोड़ी सी मैं और बात करना चाहूंगा अपने इनिशियल slide पे, where we were just looking at this part here, how magnets were discovered. तो बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना जो दिखा कि ये चीजें ऐसे चिपक रही हैं, तो इससे अब हमें एक चीज इन्फरेंस मिल सकता है कि अगर कोई चीज हमें ढूंढनी हो विच हैज अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, कोई अगर एक खोए हुए सब्सटेंसेस में से ऐसी चीज हमें ढूंढ के निकालनी हो और हम आंख से नहीं ढूंढ पा रहे हैं और बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, चीजें सामने मिक्स्ड पड़ी हुई है, तो हाउ डू वी सेपरेट? एक सेपरेशन मैकेनिज्म के लिए भी यूज होता है मैग्नेट्स, जो एक इकोनॉमिक कह रहा हूँ, एनवायरमेंटल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो बड़े बड़े वेस्ट डंप्स होते हैं, जो बड़े बड़े डंप स्टेशन होते हैं जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, वहां पे उनका काम क्या है? वो ये चाहते हैं कि डिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो अलग हो जाए और ऐसा वेस्ट जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचा सकता है, the kind of waste which is not degradable and can harm the soil in which or around which it is buried, उसे सेपरेट करने के लिए हम ऐसे ही मैग्नेट्स का यूज करते हैं, जो हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट सीरीज में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं विच वो क्रेन से जुड़े होते हैं और उन डंप स्टेशन पे वो हवर करते हैं पूरे डंप स्टेशन में, एंड वहां जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो चिपकते जाते हैं और फिर उनको वो सेपरेट कर लेते हैं उससे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूसेज है मैग्नेट्स का जो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी में हमने अपने घर के अप्लायंसेस के बारे में पढ़ा था, राइट? कि अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं एंड दे कन्वर्ट सर्टेन एनर्जीज इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। तो जैसे मोटर्स होते, मिक्सीज हैं आपके घर में, ग्राइंडर्स, मिक्सर्स, या पानी के पंप्स होते हैं, मोटर्स होती हैं, वो क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है और वो कुछ एक घूमने वाली चीज, मोटर इज समथिंग दैट रिवॉल्व्स और मेक्स समथिंग रोटेट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वो एक मैकेनिकल मोशन मिला रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी उसे, वो मोटर, वो अप्लायंस। तो मोटर्स आर ऑल्सो हैविंग अ कंपोनेंट विच आर मैग्नेट्स। मैग्नेट्स ही वो कैपेसिटी, या कैपेसिटी नहीं, टेंडेंसी प्रोड्यूस करते हैं उस मोटर की जो कॉइल होती है उसमें, जो उसे घुमाती है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में अपनी देखेंगे कि ये जो एरोज बन रही थी अभी मैग्नेट्स के अराउंड जो हमने देखी थी, वो उनका रोल है क्या? उनमें जो डायरेक्शन से करंट में डायरेक्शन हमने देखा था, जो एरोज बनती थी, उनका क्या रोल था? कि वो चार्ज को इधर से उधर ले जा रही है, जब चार्ज एक लोड के थ्रू पास करता है तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट या हीट या फिर मैग्नेटिक या फिर रोटेशन, किसी भी एनर्जी में। तो मैग्नेट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड एज साइंस हैज इवॉल्व, वो चीजों को अलग अलग नहीं समझना चाह रहा है, वो इतनी सारी अपनी डिस्कवरीज को एक साथ कॉन्ग्लोमरेट करके, कंडेंस करके यूनिफाइड थ्योरी बनाना चाह रहा है। तो व्हेन you delve deep into
फोर्सेस ऑफ नेचर और ऐसे थोड़े मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जब आप थोड़ा देखना शुरू करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट डिफरेंट, बट उन्हें साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कहते हैं। एंड अभी तो हम इसका भी बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, लेकिन भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी सब्सटेंस में उसको अगर हमने मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलने लगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, लिटरल टर्म था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिलेट करता है वो थोड़ा डिफरेंट है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो लाइट है दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ फोर्स। इवन लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन। ये ग्रास करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देखूंगा अगर क्वेश्चंस कुछ होंगे इससे रिलेटेड तो इन्हें मैं जरूर आगे लाऊंगा। लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ग्रास्प कि हर चीज इंटर रिलेटेड है। जो चीजें हमें अपने एनवायरनमेंट में दिखती हैं अलग अलग फोर्सेस में, अलग अलग फॉर्म्स में, उनका बेसिक कंस्टिट्यूएंट एनर्जी सेम ही है। एंड वही एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लेती है डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी बन जाती है जब पानी फ्लो हो रहा है उसमें, कभी वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है जब कहीं एनर्जी कहीं स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है जब चार्जेस की बात आती है, चार्जेस के थ्रू अगर एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। एंड उसी इलेक्ट्रिसिटी बनने के बीच में मैग्नेटिज्म भी एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स में एनर्जी कंटेन्ड है, फाइनाइट एनर्जी है, एंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात दिखाई थी साइंटिस्ट ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे डायरेक्टली एक इक्वेशन में बना के दिखाया था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो वो रियल लाइफ में यूज कैसे हो रहा है, फ्यूजन रिएक्टर्स में यूज हो रहा है, फ्यूजन बॉम्ब्स, जो कि बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, बट दे आर एक्चुअली यूजिंग दिस universal truth about this universe. Energy can be transformed into any form, any any effect, and then it can be reversed as well. So that being said, थोड़ा एक हमने आउटलुक ले लिया है कि मैग्नेटिज्म में है क्या, मैग्नेट्स नेचुरली कैसे आकर करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में तो नहीं आएंगे कि हाउ इज डिग्रेडेबल एंड बायो नॉन डिग्रेडेबल या मेटालिक वेस्ट सेपरेटेड फ्रॉम, ये तो सबको पता ही है, स्कूल में सबने देखा है। लेकिन ये हम जो 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उसमें ज्यादा रीजनिंग पावर देगा वो हमें सीखने की कि मैग्नेटिज्म जो इफेक्ट्स डालता है वो असल में डालता कैसे है। तो मोटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है, लेकिन मैग्नेटिज्म कहाँ रोल प्ले कर रहा है कि वो उसे रोटेशन में कन्वर्ट करके दे रहा है। और किसी सब्सटेंस को मैग्नेट में कैसे बनाते हैं, कैसे किसी भी मेटालिक सब्सटेंस को मैग्नेट की तरह कैसे यूज किया जा सकता है, ये हमने सीख लिया था अपने इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में कि when an inductive load या when a metallic core is wounded by a conducting wire, then it is converted into electromagnet when an electric current is passed through it. तो ये हमने देख ही लिया था। एंड इवन क्लास 10th के जो टॉपिक है वो यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट उसमें थोड़ा और डिटेल में है। एंड ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हमने देखे ऐसे बार शेप के, इनका ये जो फिनोमिनन है रिपल्शन अट्रैक्शन का, ये होता कैसे है, व्हाट आर द ऐसे निकलने वाली वेव्स कैसी हैं, ये हम जानेंगे। एंड इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, हमें कैसे वो इफेक्ट करता है। एक बहुत ही रियल यूज केस मैं आपको बता सकता हूँ, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें इफेक्ट करती है तो कैसे करती है। ये मैंने शायद सदगुरु जी के एक उसमें सुना था, एंड इवन दो माय डैड हैज टोल्ड मी अबाउट दिस, कि आपको जो सोने का डायरेक्शन बताया जाता है, आपके बेड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए। वो हमेशा मना किया जाता है कि नॉर्थ हेड और साउथ पैर करके नहीं सोना चाहिए। बचपन में नानी ने कहानी जरूर सुनाई होगी कि यमराज उठा ले जाता है, लेकिन वो
लिटरली कोई यमराज आके नहीं उठाता है, आपकी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल चेंज होने लगता है जिसकी वजह से आपको एलिमेंट्स, डिजीजेस या प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो सकती हैं। जिन भी लोगों को अगर रात में सोने में दिक्कत होती है, दे कैन ऑलवेज टेक दिस हैक। हैक नहीं, ये लाइफ जीने, आर्ट ऑफ लिविंग है एक तरह की। बट अगर वो अपने बेड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख के सोएंगे, देन दे विल डेफिनेटली इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन जो सब्सटेंस है, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मैग्नेटिक मटेरियल जिसको बोला जाता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में जो कोर जिसकी हम बात कर रहे थे, मेटालिक कोर, वो आयरन का ही बनता है। ये सबसे अच्छा मैग्नेट्स के साथ ये काम करता है। बॉडी में हमारे आयरन होता है, एंड वी इफ वी स्टार्ट स्लीपिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो हमारी बॉडी का जो आयरन कंटेंट है हमारे ब्लड में, वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आने लगता है। हमारे ब्लड में ब्लड के जो फ्लो को है वो रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है। नेचुरल फ्लो जो ऊपर से नीचे हो रहा है, उसको वो नीचे से ऊपर करने लगता है। And that causes a lot of health issues, mental disturbances, disturbed sleep and whatnot. तो ये एक जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन टू स्लीप। And that is all that I have to talk about in today's lecture. And I am open to questions if you guys have any. So let us head over to the chat box and see if you guys have some questions. Some people have said yes about they agree with me. So guys, shoot up any questions if you have. आज का lecture बहुत small था, I know that, but that is the scope whatever there was in the NCERT class 6. बहुत easy है, अब हम लोग का level थोड़ा बढ़ गया, हम लोगों ने काफी important चीजें पढ़ ली हैं, तो class 6 की चीजें easy लगने लगेंगी definitely. Do you guys have any questions about magnets? कोई ऐसा magnetic phenomenon जो उन्हें समझ ना आता हो कि क्यों होता है, कैसे होता है? Any question? Anything out of the blue? Anyone? Okay, fair enough. If you don't have any questions, it is also justified because we haven't. Okay, fine. We haven't had any revelation in today's lecture कि ऐसा कुछ नया हमने नहीं जान लिया. Although मुझे लगता है कि ये वाली चीज जो थी मैग्नेटिक हिल वाली, ये सबको शायद ना पता नहीं हो, बट आप लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जाना होगा आप लोगों ने. बट ये ऐसा क्यों होता है, ये शायद सबको ना पता रहा हो. मे बी समथिंग न्यू दैट वी लर्न टुडे. एंड बस this was all about the natural occurrence of magnets, and magnets कैसे exist करते हैं हमारी अर्थ पे. And in the next week's lecture we will dive deep into the intricacies of magnetism, कि वो force of magnetism जो है वो कैसे act करती है, in which direction it acts, ये repulsion, ये attraction होता क्यों है. And then again we'll revise our topic of electromagnetism, ki how electricity generates this effect of magnetism in certain materials called magnets, yeah, metallic materials. So that being said, thank you for today's time. Thank you guys for your patience, and keep learning new things and keep being curious. Thank you so much.